وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر زراعت پنجاب کی ہدایت کے مطابق محکمہ زراعت توسیع تحصیل جڑاوالا اور ضلعی یونیورسٹی فیصل آباد کے باہمی اشتراک سے زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت آنے والے طلباء طالبات کے لیے استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں رضوان عامر خان اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اور دیگر طلباء و طالبات سے خطاب کیا اور ان کو گندم کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی اور زیادہ گندم اگاؤ مہم کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا گیا۔ تقریب زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اساتذہ، طلباء، طالبات اور محکمہ زراعت توسیع جڑاوالا نے فیصل آباد روڈ پر منعقدہ روڈ شو ریلی میں اہلیان علاقہ میں لٹریچر تقسیم کیا اور زیادہ گندم اگانے بارے معلومات فراہم کی گئیں۔ محکمہ زراعت توسیع اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی باہمی اشتراکی مہم 6 نومبر تک جاری رہے گی، جس میں کاشتکاروں کی آگاہی کے لیے یوم کاشتکاران اور زرعی تربیتی نشستوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال عارف والا میں ادویات کی کمی پر حاجی چودھری خالد امرتسری کی کاوش رنگ لے آئی۔ مہیر حضرات کے تعاون سے 2 لاکھ مالیت کی ادویات تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال عارف والا انتظامیہ کے سپرد کر دیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد مبین سے۔ جی مبین، آگاہ کیجیے گا۔ خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار عارف والا کی ہر دل عزیز شخصیت حاجی خالد امرتسری کو جب علم ہوا کہ عارف والا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ادویات کی شدید قلت ہو چکی ہے، دور دراز سے آنے والے مریض ادویات کی کمی کے باعث خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے مخیر دوست احباب سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل نکالا اور 2 لاکھ مالیت کی ادویات اسپتال انتظامیہ کے سپرد کر دیں۔ حاجی خالد کے ساتھ جن شخصیات نے اس کاوش میں تعاون کیا، ان میں ملک اجاز، جاوید محمود چودھری، حاجی مقبول احمد، شیخ حاجی محمد اسلام چودھری، حاجی محمد اشرف، حاجی غلام رسول رحمانی چودھری، محمد عمران امرتسری، حافظ محمد علی شامل ہیں۔ حاجی خالد کی کاوش پر ہسپتال انتظامیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی حاجی خالد صاحب بہت ہی نامور شخصیت شہر کی ہماری، ہم ان کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک اچھی کوانٹٹی جو میڈیسن کی ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر عارف والا کو دی ہے۔ ہم ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اور مزید آگے بڑھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم ہر وقت ہر لمحے اس ادارے کے لیے، اس عوام کے لیے حاضر ہیں۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت اور عمر میں برکت دے۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ ہمارے نمائندے ملک مبین کی رپورٹ کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ کے موٹر سائیکلوں کو تو بند کیا جا رہا ہے، لیکن رکشہ والوں کی بدماشی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ نہ کوئی ٹریفک پولیس، نہ محکمہ ایکسائز۔ سب سے مطالبہ کرتے ہیں اس بات کا فوری ایکشن لیں۔ عارف والا گول چوک میں رکشہ والوں کا ہجوم عام عوام کے لیے درد سر بن گیا۔ کم عمر رکشہ ڈرائیورز عوام کے لیے وبال جان بن گئے۔ ساؤنڈ سسٹم اوور سپیڈ کی وجہ سے سڑک پر مختلف حادثات ہو چکے ہیں، جس سے کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ حادثات کے شکار عوام نے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مکرم و محترم الطاف حسین حالی صاحب کو MSc میتھمیٹکس میں نمایاں پوزیشن کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی سے مکمل کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں عارف والا سے ملک مبین کی اس رپورٹ میں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس بورے والا اور محکمہ زراعت حکومت پنجاب کی جانب سے گندم بڑھاؤ مہم کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں گندم کی زیادہ پیداوار کی حامل اقسام، زمین کی تیاری، کھادوں کا متناسب استعمال، جڑی بوٹیوں کا تدارک، کٹائی کا جدید طریقہ اور دیگر مراحل کے بارے میں کسانوں کو آگاہی دی گئی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس بورے والا میں منعقد ہونے والی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کے دوران وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں سے گندم کے زیر کاشت رقبہ میں بتدریج کمی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے، جس پر قابو پانے کے لیے پچھلے سال حکومتی سطح پہ کسانوں کو گندم کی کاشت کی طرف راغب کرنے کے لیے زرعی جامعات اور محکمہ زراعت توسیع حکومت پنجاب کے باہمی اشتراک سے گندم بڑھاؤ مہم کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس سال اس مہم میں وسعت لاتے ہوئے پنجاب کی زرعی جامعات کے 50,000 طلباء و طالبات دیہاتوں کا رخ کریں گے اور زرعی ماہرین کی زیر نگرانی کسانوں کو گندم کی پیداوار بڑھانے کے بارے میں آگاہی دیں گے۔
उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गंदम की आला क्वालिटी के इक़साम की तैयारी पर काम जारी है। डॉक्टर इकरार अहमद का मजीद कहना था कि तरक्की पसंद काश्तकार गंदम की 70 से 80 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर रहा है, जबकि छोटे काश्तकार कई वजूहात की बिना पर 35 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदीद ज़राई इल्म को इस्तेमाल करते हुए अनाज में खुद कफालत के चैलेंजेस से नबरदाज़मा हुआ जा सकता है। सेमिनार के अख्ताम पर किसानों में आगाही के लिए रोड वॉक का भी अहतमाम किया गया। इस मौका पर अरकान असम्बली, किसानों, सिविल सोसाइटी और तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में गंदम काश्त का इफ्तिताह किया गया। कामरान नवाज पंजूथा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की हदायत पर SHO थाना सिटी आतिफ रजा, उनकी टीम में शामिल दीगर अफसरान और मुलाजमिन की बड़ी कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक सिटी पुलिस चकवाल ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से 18 अदद 70 सीसी मोटरसाइकिल्स, 2 अदद हुंडा सीसी मोटरसाइकिल, टोटल 1,02,520 मोटरसाइकिल्स और 1 अदद रक्षा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा मुलजमान में हमजा जावेद, साकिन ढोक बोदले शाह, चमरेज खान कौम अफगानी पठान हाल मुकीम तंतराल शामिल हैं। इस मौका पर मोहम्मद अफजल लोधी SDPO सदर सर्कल ने कहा कि कामरान नवाज पंजूथा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की हदायत पर ज़िला भर में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए है। उन्होंने मजीद कहा कि जराइम के कला कमा के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं और दीगर मुकदमात में मुलविस अदम गिरफ्तार मुलजिमान की गिरफ्तारी का तहर्रुक भी किया जा रहा है। चकवाल को जराइम से महफूज बनाने के लिए जदीद तकनीकी वसाइल भी बरोए कार लाए जा रहे हैं। ज़िला दादू में वबाई अमराज में मुब्तला सैलाब मुतासरीन की तबी इमदाद का सिलसिला जारी है। खैरपुर नातिन शाह में मुस्लिम हैंड्स और पाकिस्तान नेवी की जानिब से मुश्तरका तौर पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 600 से ज़ायद मरीजों को इलाज मुआलजे के लिए तबी इमदाद फराहम की गई। ज़िला दादू में मुस्लिम हैंड्स और पाक नेवी की जानिब से मजमूई तौर पर 19 मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया, जिसमें 10,000 से ज़ायद मरीजों को तबी इमदाद फराहम की गई। इस मौका पर मुस्लिम हैंड्स के नुमाइंदे खुर्रम जदून और आसिफ राठौर का कहना था कि चेयरमैन मुस्लिम हैंड सैयद लख्त हुसैन की हदायत पर ज़िला दादू समेत सिंध भर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि अब तक 10,000 से ज़ायद मरीज़ों को इलाज मुआलजे के लिए तबी इमदाद फराहम की गई है। उधर मेजर डॉक्टर ताबिश का कहना था कि सैलाब मुतासरा इलाकों में चेस्ट और जिल्द इन्फेक्शन समेत मलेरिया बुखार में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखने को मिला। ताहम पाक नेवी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मसरूफ़ अमल है। साबिक सूबाई वज़ीर MPA अकबर अयूब की हरीपुर प्रेस क्लब आमद, नई काबीना को मुबारकबाद। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करा दी। हरीपुर प्रेस क्लब में MPA अकबर अयूब खान की आमद के मौका पर हरीपुर प्रेस क्लब की नौमुंतखब काबीना और मेंबरान की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर MPA अकबर अयूब खान ने सहाफ़ी बरादरी के मसाइल सुने और प्रेस क्लब खोलने पर नौमुंतखब काबीना और मेंबरान को मुबारकबाद दी और मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरसा 2 साल से बंद प्रेस क्लब को खोलने और आपस में इत्तेहाद और भाईचारा कायम रखने पर तमाम काबीना और मेंबरान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है अभी मामलात सीधे रास्ते पे आ गए और आगे भी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा आपस में इत्तेफाक पैदा करके ये एक प्रोसेस है। इलेक्शन होता है, हर साल इलेक्शन होता है, इलेक्शन होगा अपने सिस्टम के मुताबिक। जो जीतेगा वो आके जो जिसका राइट बनता है वो इधर आके बैठेगा और हार जीत गेम का हिस्सा है। कभी एक जीता है, कभी में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक तो हम इसको आपको बिल्कुल इसको टिप टॉप कंडीशन में हम आपको प्रेस क्लब को इंशाल्लाह करके देंगे। आपकी जो ज़रूरियात होंगी, जो ज़रूरियात पूरी होंगी वो मैं इंशाल्लाह अपने फ़ंड्स में से जो हमारे MPA के फ़ंड्स होते हैं, जो भी मुझे अभी मिलेगा, मेरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। MPA अकबर अयूब खान ने साफ़ी बरादरी के लिए हरीपुर प्रेस क्लब की रेनोवेशन के साथ साथ हरीपुर प्रेस क्लब की मुकम्मल फ़ाली की यकीन दहानी करवाई, जिस पर तमाम जुमला काबीना और मेंबरान ने MPA अकबर अयूब खान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और आखिर में दुआ भी की गई।
कराची के करीबी इलाके नूरियाबाद के जालसाजों ने 30 एकड़ प्लॉट के जाली कागजात बनाकर निजी कंपनी के ठेकेदार से लाखों रुपया फ्रॉड के जरिए हड़प कर लिए। रकम वापस तलब करने पर सोशल मीडिया पर जालसाजों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हैदराबाद के करीबी गांव के रिहायशी FW कंपनी के ठेकेदार गुलजार अली पलारी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नूरियाबाद में जय कुमार से 3 करोड़ 90 लाख रुपया की रकम से 30 एकड़ प्लॉट खरीदने के लिए एग्रीमेंट के तहत सौदा तय हुआ, जिस पर मैंने पहले 46 लाख रुपया रकम बैंक के मार्फत दी, जिस पर मुझे प्लॉट के जाली कागजात दिए गए, जिस पर दी गई रकम जालसाजों से वापस तलब की तो मेरे खिलाफ नसीम नगर हैदराबाद थाने पर जय कुमार की जानिब से मेरे खिलाफ धमकियां देने के झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना था कि जालसाज जय कुमार, दियाराम और गंगू सोशल मीडिया पर मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिससे मेरी साख और इज्जत मजरूह हो रही है। उनका कहना था कि मैं काश्तकार हूँ, मेरी ज़ाती मलकियत है। उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, FIA, साइबर क्राइम, वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर से फौरी नोटिस लेकर जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। मेरे भाई मेरी जान के दुश्मन बन गए, लालच ने अंधा कर दिया, जायदाद की खातिर मुझे मारने की कोशिश की गई। मोहम्मद अकबर खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि सुबह सवेरे मुझे मारने की कोशिश की गई मगर मौजज़ाना तौर पर बच गया, क्योंकि मैं सिंध जैकबाबाद में रहाइश पजीर हूँ और जैकबाबाद में मेरे भाई मोहम्मद खान खोसा ने हाथ में TT पिस्तल उठाए हुए मारने की कोशिश कर रहे थे कि माँ ने शोर शराबा करने में भी अंदर से आकर देखा कि भाई के हाथ में TT पिस्तल उठाए हुए मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लड़ने और झगड़ने से हाथ से पिस्तल गिर गया और मेरी जान बच गई। मैं हुकूमत बलूचिस्तान और IG बलूचिस्तान DIG नसीराबाद से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर मेरे भाई के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जायदाद ने अंधा कर दिया, मुझे मारने पर तुल गए। मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो। खबर शामिल करते हैं लोरा लाइव बलूचिस्तान से। मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराई ब्यूरो चीफ के मुताबिक लोरा लाइव पुलिस की किला सैफुल्ला में कार्रवाई, इश्तहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई में एक शख्स गिरफ्तार, कब्जे से एक TT पिस्टल बरामद। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लोरालाई रेंज मलिक मोहम्मद सलीम लहरी की हिदायत पर SSP लोरालाई आसिफ फराज मस्तूई के अहकामात पर ज़ेरे निगरानी STPO सरदार नसरुल्लाह खान हमदाज़ई पुलिस थाना सदर लोरालाई ने किला सैफुल्ला में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं लोरा लाइव बलूचिस्तान से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराई के मुताबिक कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर बुरी जमील अहमद बलोच की ज़ेरे निगरानी ड्रग एरीगेशन मुहिम का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और इंटेलिजेंस के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में लोरा लाई शहर और इसके मज़ाफ़ात में बढ़ते हुए मंशियात के कारोबार पर तफसीली बहस हुई। इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि मंशियात के खिलाफ मुहिम को चलाने का मकसद इलाके से इस नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। मंशियात के बड़े मराकज़ और डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एंटी नारकोटिक्स की टीमें लिबीज़ और पुलिस के अफसरान के साथ राब्ता में रहेंगी और मुश्तरका तौर पर एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे निगरानी ये तमाम तर कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से आला हुकाम तक को एतमाद में लिया गया है और इस बार कोई नहीं बचेगा। मुख्तलिफ इलाकों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कश्मीर में सिंध सहाफ़ती इत्तेहाद की मरकज़ी कॉल पर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल और सहाफ़ी नरेश कुमार की पुरस्कार मौत के खिलाफ शहर के सहाफ़ियों और सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कश्मीर में सिंध सहाफ़ती इत्तेहाद की मरकज़ी कॉल पर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल और सहाफ़ी नरेश कुमार की पुरस्कार मौत के खिलाफ शहर के सहाफ़ियों और सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। अल्लाह बचाए और शेख हाकिम अली खोसो, नादर अली कुलाची, रोशन नसीरानी, इकरार गुल फराज और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि सहाफ़ियों का कत्लेआम किया जा रहा है, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, लेकिन इसके बावजूद कोई कानून लागू नहीं हो सका, बल्कि आए रोज़ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कभी झूठे ATC केस बनाए जाते हैं तो कभी एहतजाज करने वाले रहनुमा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, कभी सहाफ़ियों का कत्लेआम किया जाता है। उन्होंने सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है।
शहीद होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ और नरेश कुमार के पुरअसरार कत्ल के खिलाफ कंबर सहाफ़ी इत्तेहाद की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके शदीद नारेबाजी की गई। हमारे नुमाइंदे लाला अख्तियार मंगी के मुताबिक लाड़काना और कंबर शहदाद कोर्ट में सहाफ़ी इत्तेहाद की जानिब से कीनिया में शहीद होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ और सक्खर के नरेश कुमार के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करके प्रेस क्लब के सामने शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर पाकिस्तान मीडिया के ओहदेदारान काजी नयाज हुसैन, हाकिम अली खासखेली, महमूद अली शेख और दीगर ने कहा कि हक सच की आवाज़ को दबाने के लिए सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस मौका पे GM उर्दू न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल कंबर के सदर लाला अख्तियार मंगी ने कहा कि कीनिया में शहीद किए गए सहाफ़ी अरशद शरीफ और नरेश कुमार के कत्ल के साफ शफाफ तफ्तीश करके कत्ल मुलव्विस मुल्ज़मान को जाहिर करके कानून के कटहरे में लाके सज़ा दी जाए। उन्होंने वफाक और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कंबर शहदाद कोर्ट में सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ कराची में कत्ल होने वाले सिंधी इंजीनियर के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ से कराची में कत्ल होने वाले सिंधी इंजीनियर के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थे जिन पर कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा लिखा हुआ था। इस मौका पर GM उर्दू न्यूज़ के नुमाइंदे लाला अख्तियार मंगी से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि कराची में सिंधियों के कत्लेआम रोज़ का मामूल बन गया है, मगर हुकूमत ने इस कत्लेआम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से सिंध के शहरी एहसास महरूमी का शिकार हो गए हैं। उन्होंने हुकूमत से कराची में सिंधियों के कत्लेआम में मुलव्विस जवाबदारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद। कौंसलर इत्तेहाद जिला ओस्ता मोहम्मद के सरपरस्त आला मीर अली नवाज खान, इमरानी सदर फाइक अली जमाली, जनरल सेक्रेटरी इमाम बख्श जमाली, नायब सदर अब्दुल सत्तार जमाली ने रजिस्टर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़िले इंतज़ामिया ओस्ता मोहम्मद और तहसील इंतज़ामिया ने ताहाल हकीकी सलाह मुतासिरीन को कुछ भी नहीं दिया। हमने 27 अक्टूबर को असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के सामने अपने जायज़ हकूक़ की खातिर एहतजाजी कैंप भी लगाया, लेकिन नाअहल इंतज़ामिया की जानिब से कुछ भी अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर अक्सर अपने ऑफिस से गायब रहते हैं और मुतासरीन का सामान इंतज़ामिया सिंध और कोयटा में फ़रोख्त कर रहे हैं। ओस्ता मोहम्मद की इंतज़ामिया मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम कई मरतबा असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के चक्कर काट कर थक गए हैं, लेकिन कुछ भी सुनवाई ना हो सकी। इस वक्त तक भी हकीकी सलाह मुतासरीन बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जूँ तक नहीं रेंगती। उन्होंने मज़ीद कहा, हम कल बरोज़ सोमवार को ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया ओस्ता मोहम्मद के खिलाफ खानपुर के मुकाम पर पुरअमन एहतजाज करेंगे। रिपोर्ट शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराई। लोरालाई बलोचिस्तान से महकमा यूथ अफेयर्स बलोचिस्तान की जानिब से मुनक्किदा 2 रोज़ा यूथ फेस्टिवल लोरालाई डिवीज़न के दूसरे दिन तलबा और तालिबात के दरमियान तकरीरी मुकाबला हुआ। इस मौका पर टैबलो मिली नगमे भी पेश किए गए। तकरीरी मुकाबले में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल की तलबा जायका बीबी ने अव्वल, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल दर्ग ज़िला मूसा खेल ने 2वीं पोजीशन हासिल की, जबकि गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज लोरालाई के मोहम्मद परवेज़ ने 100वीं पोजीशन हासिल की। जबकि इस तकरीरी मुकाबले के जजेस के फ़राइज़ प्रोफेसर रोहेल, मैडम फरीदा और मैडम नाइद ने अंजाम दिए। फेस्टिवल के मेहमान ख़ुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मोहम्मद इसहाक जमाली थे। फेस्टिवल में डिप्टी कमिश्नर रोब जमील अहमद बलोच, एडिशनल कमिश्नर लोरालाई डिवीज़न क्लेमुल्ला काकर, सूबाई वज़ीर हाजी मोहम्मद खान तूर अतमा खेल के फर्जंद अफजल खान अतमा खेल और दीगर ने मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यूथ फेस्टिवल का इनेकाद एक अच्छा इक़दाम है जिसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। नौजवानों में मुस्बत और सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए अब तसलसल से हर साल फेस्टिवल का अहतमाम होना चाहिए ताकि नौजवानों को इनकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। तलबा और तालिबात और नौजवान नस्ल हमारी कौम की ताकत हैं। नाज़रीन, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए सादिया खालिद को GM उर्दू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।